ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ اسلاموفوبیا کا ذکر اب ہم تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر خصوصاً عمران خان صاحب اور پھر باقی ممالک بھی اس حوالے سے اب اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے پورے دنیا کے امن کے لیے. اگر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ذرا سا آپ اس کا پس منظر بیان کر سکیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ کیا نئی ہے یا پہلے سے موجود تھی، اور پھر OIC کے اجلاس کے اندر اس کے اوپر گفتگو کتنی اہم ہوگی؟ بہت شکریہ. آپ نے بڑے دوبارہ من کوشش کوچے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سرا رابطہ کو دا اغوی آواز منترا کلیئر نرازی لگیا دے او اغوی ولچے کافی ریسرچز اغوی کڑی دی دا ہائر ایجوکیشن اغوی سو کالا پورے مسلسل اغوی تا بہترین محقق ایوارڈ ملو شوے دے اور دا اغوی ایریا آف ریسرچ ہوم دا اسلاموفوبیا دے چا آخر سنگا دا پا پورا دنیا کے مخیطہ راروان دے دا اسلاموفوبیا چکم دے وقت کے دنیا کے یا چیلنج پا طور باندے مخیطہ راروان دے پورا اسلامی ملکونو دا پارا اور سنگا بیا آغا یا چیلنج کنٹرول کوڈ دا پارا اور پاکستان سکردار ادا کولی شی اور اسلامی ملکونا سکردار ادا کولی شی. بیا مکسرہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی، اپنی بات کو آپ کنٹینیو کیجئے گا. جی میں یہ بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک تاثر بڑا عام سا ہے کہ اسلاموفوبیا کوئی ایک نئی ٹرم ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل کوئی نئی ٹرم نہیں ہے. یہ ایک گمراہ کن بعض دفعہ لٹریچر کے اندر اس قسم کی بات یہاں پہ کی جاتی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ 1923 کے اندر بھی ایک ریسرچ جنرل کے اندر اس ٹرم کو اسلاموفوبیا کے ہی اور اسی کانٹیکس میں جس میں آج اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ استعمال ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ 1910 میں بھی ایک پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر جو کہ فرانس کے اندر پی ایچ ڈی تھیسس یہ پبلش ہوا تھا تو وہاں پر بھی یہ ٹرم آ چکی ہے اور یوز ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 112 سالہ پرانی جو ٹرم ہے یہ تو ٹرم ہے، لیکن اگر اس کو اسلاموفوبیا ایز اے فینومینن دیکھا جائے یعنی تصور اسلاموفوبیا کا اس کو تو اٹھائیں تو وہ تو آپ کے پاس جب اسلام نے جنم لیا ہے اس وقت سے ہی یہ موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑا ایک تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ لٹریچر پروڈیوس ہوا اور بڑا اسلاموفوبک لٹریچر تھا. اور اس میں آپ ہر صدی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جیسے فار انسٹنس میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ڈینش کارٹونز کا آپ نے بہت زیادہ سنا تھا تو یہ ڈینش کارٹون ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بڑی آج کی بات ہے، لیکن ہم نے جب اپنے ریسرچ میں اس کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ 13ویں سنچری کے اندر پیٹر دی وینریبل نے جب قرآن کی ٹرانسلیشن کی تھی تو اس ٹرانسلیشن میں اس نے ساتھ میں جو تفسیر میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو تفسیر میں وہ غلط قسم کے خاکے جو ہے نا وہ بنا دیا کرتا تھا. تو یہ خاکے جسے آپ کہہ سکتے ہیں 13ویں صدی میں ہیں. پھر 14ویں صدی کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں اور پھر 15ویں صدی کے اندر پورٹریٹ ایسی بہت ساری بنی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ اس وقت بہت سارے یورپین کنٹریز کے اندر وہ پورٹریٹس آپ کو ڈسپلے ہوتی ہوئی بھی ان کے میوزیمز میں نظر آتی ہیں. تو اسلاموفوبیا ایک بڑا آرکائک کانسیپٹ ہے، یہ ایک بڑے صدیوں سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور لٹریچر جو اس پہ پروڈیوس ہوا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی لینگویج اور وہی لائن آف آرگومنٹ جو کہ آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے وہ آج کے نیوز پیپرز میں اسی طرح سے استعمال ہو رہی ہے. اور بعض ممالک کے اندر جو لاز ایسے بنائے گئے ہیں لیجسلیشن مسلمانوں کے حوالے سے ہوئی ہے اس کو بھی میں ہسٹوریکلی کنیکٹ کرتا ہوں کہ بہت پیچھے سے جو ہے نا یہ اس کی لنکیجز ہیں. آج جو ابھی بہترین کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ بڑے تواتر کے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں. اپنی پہلی جو ان کی جنرل اسمبلی کے اندر اسپیچ تھی پھر دوسری اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی مونومنٹل یا ہال مارک ڈیولپمنٹ جو ابھی ہوئی ہے وہ 15 مارچ والی ہوئی ہے کہ جس میں اسلاموفوبیا کو ایز اے ریکگنائزڈ کانسیپٹ. اس سے پہلے یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کی جب بھی بات کی جاتی تھی تو ویسٹرن جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ مائنڈ سیٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا کہ یہ اسلاموفوبیا ایکچولی مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کی نسبت سے جب بھی اسلام پہ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا قرآن پہ ہم کوئی لیجیٹیمیٹ کرٹیک بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اسلاموفوبک کہتے ہوئے. لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کے بعد اور اس کو UN کے لیول پہ ریکگنائزڈ ہونے کے بعد
पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है कि अब इस स्टेज जिसे आप कह सकते हैं ये इस किस्म की फ्रिवुलस किस्म की डिबेट नहीं होगी कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता और मुसलमान खामखा इसको अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र भी किया कि गुज़िश्ता 4 साल से स्पेशली जब यूएन की जनरल असेंबली थी, इमरान खान साहब अकेले थे, उन्होंने जिक्र किया, फिर वो अकेले नहीं रहे, उन्होंने 7 और साथी इकट्ठे किए, तुर्की की तरफ से ये बात हुई, मलेशिया ने ये बात की, ईरान ने ये बात की, और आहिस्ता आहिस्ता आज ये बात OIC में डिस्कस हो रही है। 57 ममालिक इस बात के ऊपर आगे बढ़े हैं और शायद उस पर इत्तेफाक भी करें और हमें फिर कोई करारदाद यहाँ भी नजर आए। क्या समझते हैं आज से 10 साल 15 साल के बाद, जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि 112 साल के बाद इस टर्म को एज अ रिकग्नाइज टर्म माना गया है, तो ऐसा 10-12 साल के बाद जब दोबारा इसका जिक्र आएगा, पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा होगा? तारीख में पाकिस्तान का किरदार इस टर्म के हवाले से और फिर इसकी रोकथाम के हवाले से कहाँ पे देखा जाएगा? जी, बड़ी अहम बात आपने कही है। देखिए कि आज से जब कोई तकरीबन 14 साल या 13 साल पहले, जब 2007 के आखिर में करके जब मैंने पहली मर्तबा इस्लामोफोबिया पे काम शुरू किया था, तो पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं ना, कोई इस्लामोफोबिया का नाम तक नहीं जानता था और उनके लिए एक बड़ी नई टर्मिनोलॉजी थी। और फिर 2008 में हमारे को 3 पेपर्स भी इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर इस हवाले से पब्लिश हुए थे। तो दिस वाज ऑल टुगेदर अ न्यू टर्म फॉर द पीपल इन पाकिस्तान। लेकिन दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना के तौर पर अपीयर हो रहा था। और जिस तरीके से, क्योंकि ये इलीट डिस्कोर्स एक्चुअली दुनिया के अंदर ज्यादा सुना जाता है, तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसके हवाले से एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे जाके ये बात की, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद फिर एक बड़े दरवाजे ओपन होना शुरू हुए। फिर OIC ने भी इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और OIC की आज से जो साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पहली मर्तबा इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसका डे मनाने की बात की गई और फिर उसके बाद UN के अंदर आई। तो मैं समझता हूं कि जब हम अगले कुछ सालों के अंदर जब इसको देखते हैं, तो OIC की इस टर्म के या OIC के इजलास के बाद फिर UN की तरफ आने के बाद हमें ये लगता है कि अब हम इस्लामोफोबिया को किसी एक, जिसे आप कहते हैं, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से काउंटर करने की पोजीशन में आ सकेंगे और डेफिनेटली ऑन सर्टेन लेजिटिमेट ग्राउंड्स। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से तस्वर करें कि जैसे कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर में आप देखें कि पूरे के पूरे मुसलमानों को कश्मीर के अंदर एक तरह से कैद करके रखा गया है। तो अगर इससे पहले OIC जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर अगर कश्मीर का इशू एक रीजनल इशू या एक जियोग्राफिक इशू के तौर पर नजर आता है या एक आइडियोलॉजिकल इशू की सूरत में नजर आता है, तो अब आप उसके अंदर एक और कलर ऐड हो गया है कि एक्चुअली उन्होंने मुसलमानों को भी जेनोसाइड, जिसे आप कह सकते हैं, वहां पे शुरू कर दिया है। तो आपके पास अभी इस डिक्लेरेशन के बाद मैं समझता हूं कि एक और लाइन आ गई है और उस पे भी जाके आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में विद अ डिफरेंट लेंस, जिसे आप कह सकते हैं, विद अ डिफरेंट कलर, एक और केस भी, जिसे आप कह सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं। फिर एक और बात जिसको मैं मुसलसल कहता आ रहा हूं और यकीनन इस OIC के प्लेटफॉर्म पे इस पर ज्यादा डिस्कशंस होनी चाहिए थी कि जिस तरीके से मुसलमान इस वक्त मोर देन 16% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया को मैं समझता हूं कि एक एपिसेंटर ऑफ इस्लामोफोबिया बन गया है। तो वहां पर ये हमारे जो अरब वर्ल्ड है, उनको मेरे ख्याल के मुताबिक इस पे हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन मुसलमानों को अपना कलमा को भाई समझते हुए इंडिया को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए कि अगर वो मुसलमानों के साथ इस किस्म के मसाइल को जारी रखेंगे और जेनोसाइड शुरू करते रहेंगे, और इवन जो पुराने मुगलियाई दौर के नाम थे, एयरपोर्ट्स के, सिटीज के, रोड्स के, म्यूजियम्स के, वो भी आप देखें कि इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस के अंदर वो भी अब तब्दील किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अरब वर्ल्ड की तरफ से अगर ये मैसेज उनको जाए कि अगर आप इस किस्म की चीजों को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम यकीनन जो इंडियन अरब वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए यकीनन मसाइल पैदा हो सकते हैं और उनको वापस अपने मुल्क में भिजवाया जा सकता है, विच आर इन मिलियंस। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत अहम है और हमारे अरब ममालिक भाइयों के लिए अहम है कि वो पाकिस्तान की और खास तौर पर मुसलमानों की, जो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में इवन सिर्फ इंडिया के अंदर मौजूद है, कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनके लिए इनको एक स्टेप आगे आना चाहिए। आखिरी सवाल सर, हमने जिक्र भी किया, आपने भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब इसको लीड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दीगर ममालिक की तरफ से भी अब जरा उनके लबों को जुम्बश मिलेगी? आपने जिक्र भी कर लिया अरब लीग के हवाले से, क्या वहां से भी इम्कान है या कोशिश है कि वो भी कम से कम कुछ अल्फाज ही सही लेकिन इस बारे में कह दें? ये मैं समझता हूं कि फहीम साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बड़े बबांग के ताल ये अल्फाज जो है यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, वो ये कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 1.7 बिलियन प्लस है।
और इस 1.7 बिलियन प्लस में 0.5 बिलियन सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड है, बाकी सारे के सारे नॉन अरब हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक हम ये एक्सपेक्ट क्यों करें उनसे, यकीनन उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि दे शुड स्टैंड विद 1.2 बिलियन मुस्लिम्स जो आर नॉन अरब। तो अगर उनको ये रियलाइज कराने की कोशिश करें, हमारे लेवल पे कुछ ऐसी एफर्ट्स इस जगह पे होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि फिर उसके बाद हमारे वो जो 0.5 बिलियन मुस्लिम अरब मुस्लिम्स हैं वो यकीनन फिर हमारे साथ देने के लिए इस पे तैयार होंगे। एक्चुअली इसमें सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि क्या ये इलीट डिस्कोर्स बनने जा रहा है, क्या मलेशिया का, इंडोनेशिया का या बांग्लादेश का, पाकिस्तान से, ईरान से, इस तरीके से आपके पास और जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से अगर मेजॉरिटी इस पे बात करेगी तो मैं नहीं समझता कि हमारी अरब ब्रदर्स जो है ना वो हमारे साथ इस हवाले से खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इस्लामोफोबिया देखें इस वक्त पूरी दुनिया के लिए जो कलमा गोल हो गए ना उन सब के लिए कलेक्टिव प्रॉब्लम है। तो इसकी जो कलेक्टिव जिसे आप कह सकते हैं प्रॉब्लम की नोयत है, अगर हम इसको प्रॉपरली ऊपर ले जा सकें तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक इसके अंदर बड़ी अहम बात मैं समझता हूं वो ये है कि हमें अब कुछ चंद एक डेफिनेशंस पे भी काम करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे से दुनिया में जब भी कहीं बात होती है और नेगेटिव बात होती है तो हम सारे मुसलमान चाहे कहीं भी मौजूद हैं तो उसके हवाले से दर्द महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के यानी इस 57 मुस्लिम कंट्रीज को ये मेरा ख्याल है मैसेज जाना चाहिए कि आज हम हेट स्पीच की डेफिनेशन के अंदर ये इस किस्म की जो ब्लास्फेमस चीज है उसको ऐड कराएं और यूएन के प्लेटफॉर्म पे उसको हेट स्पीच की डेफिनेशंस में लेके आएं, ताकि फिर दुनिया के अंदर चूंकि हेट स्पीच के बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज मौजूद है तो जब इस किस्म की कोई चीज होगी तो फिर यकीनन इस चीज पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई कवानीन भी बनेंगे और मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से कोई सीरियस स्टेप्स भी लेने की कोशिश करेंगे। वन लास्ट पॉइंट, आई होप आई एम नॉट टेकिंग एनफ ऑफ योर टाइम, वो ये है कि इस्लामोफोबिया के लिए सर जो नेगेटिविटीज जो सर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं उसके हवाले से बड़ा पैसा पोर इन हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अब इशू ये है कि इस पैसे को कहीं पर मैं समझता हूं कि वॉच करने की और मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर वो हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो इस्लामोफोबिया जैसी चीजें या उसके हवाले से ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स है वो दुनिया के अंदर जन्म लेते रहेंगे। तो इस किस्म के प्लेटफॉर्म से यानी OIC के प्लेटफॉर्म से हमें आज इस्लामोफोबिया FATF के तस्वर को भी फरोग देने की जरूरत है कि ये जो नेगेटिविटीज वेस्ट के अंदर पैसा उस पर इन्वेस्ट हो रहा है इसको हमें वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जबकि FATF यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स के बड़े स्ट्रिंजेंट रिजीम्स जो है ना वो यहाँ पे रखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि पैसा जो है ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ स्पिल ना हो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब दुनिया को ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि आपके यहाँ जो इस्लामोफोबिया पे मनी इन्वेस्ट हो रही है उसको भी वॉच करने की जरूरत है ताकि मुसलमानों के हवाले से नेगेटिविटी वेस्ट के अंदर ज्यादा राइज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।